Hi Surbhi. Yes. So I think we have Dr. Priyank with us here. Let me send him a request joining us. Hi everyone, be with us. Dr. Modi is joining us. He's here. Hi. Hello, Hi Dr. Modi, how are you? all fine. Very good evening. Pardon? Very good evening. Oh, a good evening This to is all. the most awaited session by everyone. Thank you for having me, Amanat, Yes, on this lovely, Monday. lovely. In fact, thank you very much for your good time to us. So I would just like to give a brief introduction about you, जो मैंने इंटरनेट से चुराया है. I don't know if I miss out on something. Do let me know. Let me know. So Dr. Modi is a founder and a director of Dr. Modi's Advanced Cardiac Care Center based in Surat. He is an interventional cardiac surgeon as well as the director and a chief cardiologist at Texas Heart Institute, Sanjeevani Hospital, Surat, and he has an affiliations at TriStar Hospital, Mahavir Cardiac Hospital, and Global Sunshine Hospital. So a lot to learn from you today. Yes, Priyank. So can you tell me कि कितना हार्ट के बारे में लोगों को पता होना चाहिए, कितना परसेंटेज नॉलेज इज इम्पोर्टेंट? Knowledge about everything in today's era is important. The problem is we live into a age of misinformation or knowledge coming from bad sources which can sometimes harm. And that is where people like you who bring social awareness makes a difference because your things are coming from a credible source. So you know what to believe in and you know what not to believe. Now we live into an era जहाँ हर एक चीज के लिए there are equivalent information contradictory to each other which would confuse a person. So गूगल yes, है ना सबसे ज्यादा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. my टुडे boss used to. एवरीवन इज लर्निंग फ्रॉम गूगल सर्च. There are Google and WhatsApp doctors now. Like as a doctor also, yeah, I remember. I don't remember when was the last time I opened books to get information. So we So have these days named WhatsApp as WhatsApp University also. true. कितने लोगों को शायद कार्डियक अरेस्ट भी हुआ है व्हाट्सएप की इंफॉर्मेशन से. Grossly, I have said it before. We had a very great personality, one of the most important industrialists of our country. Yeah, अच्छा. I don't know. It's private info, but Dhirubhai Ambani died of a stroke. So the common prevalence there was that he took tea with his beloved wife, और उन्हें भी ऐसा ही लगा था कि एसिडिटी है. कोकिला आंटी ने उन्हें Eno भी पिलाया, and after 15 minutes he was dropped dead. And that happened to हाँ. someone who's so educated, someone who had all the Yes. resources. So Yes. ये एक important चीज है जो कोविड से हम सीखे, वो था कि disease does not differentiate between rich and poor, young and old. True. And that holds Absolutely. for heart as well. Like it would not differentiate who you are. And that is the reason prevention is important here. And that is the reason. Yes, yes. ये बड़ा परफेक्ट बोला. डिजीज नेवर से सीज हु यू आर एंड व्हाट यू आर. सो ये एक चीज आज मेरा की टेक अवे है आज यहाँ से. So Priyank, I was saying कि the key takeaway from the first information is कि the disease will never see who you are and you know what you are. So that's such a perfect line to start with. So let me come. मैंने कुछ questions gather करके रखे थे आपके लिए. Of course, if I miss on some information to be shared, do share. Also, I request the people. अगर आपको कोई questions है, do please put in the chat box so that we can take it again. मुझे ये जानना था प्रियांक कि वी नो मेंस आर ऑलवेज एट अ रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस, बट हाउ प्रिवेलेंट इट इज इन फीमेल्स. So I'll start this with I always knew God was partial towards women. God made sure कि he gave the better things to women and जो कुछ बाकी रहा वो men को दे दिया. So the consideration here is uh, why people used to believe that heart disease were a problem of men was कि God gave a hormone estrogen to women before they reach menopause, right?
तो ये Right. एस्ट्रोजन इज प्रोटेक्टिव हार्मोन टुवर्ड्स एनी फॉर्म ऑफ ब्लॉकेजेस इन कॉमन प्रेलेट्स. तो जब तक आप प्री मेनोपॉजल है तब तक यू हैव अ प्रोटेक्शन विच गॉड गिव यू टुवर्ड्स द हार्ट प्रॉब्लम्स. और इसीलिए अब तक ऐसा माना जाता था, दिस वाज इवन 10 years बिफोर, कि वुमन को हार्ट प्रॉब्लम्स नहीं इतना अफेक्ट करता. और इसीलिए बहुत सारा ये जो आप कह रहे हैं, मतलब देर दे कंसिडर इट एज एसिडिटी. प्लस वी स्टिल लिव इन टू एन एरा जहां इवन एजुकेटेड पीपल, कि अगर उसकी वाइफ को कुछ प्रॉब्लम हुआ तो तुझे तो टेंशन हो रहा है. सो दैट काइंड ऑफ थिंग स्टिल एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी बिकॉज हार्ट डिजीज वर नॉट वेरी कॉमन इन वुमन 10 years बिफोर. तो अब वो जो चेंज हुआ है वो क्या हुआ है, now the traditional risk factors of stress or smoking and everything is as prevalent in our generation in men and women alike. So ye jo risk Equal. factors are, yeah, so now the risk factors are there in women as well. Like you have the same stress, rather you have double the stress. आपको घर का stress रहता है. For working woman you have professional and personal stress, which I think men are saved from. So the women live into a more darker age as compared to men in today's era. Or that is the Today. reason over the last 10 years, women has practically have an equal prevalence of heart problems as compared to men. Now, Amanat, I would just like to put one point across. Okay, in the next coming decade, women are going to have even worse numbers in terms of heart patients as compared to men. और वो क्यों होने वाला है? Because our body is from like last 2000 years. So Hmm. genetically, the woman is made to be avoiding a heart problem. मतलब उनका बॉडी वैसा बना है कि उन्हें हार्ट प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए. एंड नाउ दैट स्ट्रेस, ऑल दीज ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स जो उनमें एड ऑन हुए हैं, so they are going to harm more than they have ever harmed a man. Like a man was smoking 200 years before as well, right? So the body Hmm. mechanics is developed to adopt to that smoking. Your enzymes are there कि अगर आप अल्कोहल भी ले रहे हैं तो your enzymes are there to uh, metabolize that alcohol, which was not there in Indian woman before this. So now the traditional risk factors जो उनमें addition हुए हैं, they are going to uh, increase the prevalence, and maybe we will come to the next decade जहाँ the number of heart patients who are women is going to be more than the number of heart patients who are going तो to be. डू यू थिंक जो ये एरा चल रहा है ऑफ फेमिनिज्म ऑफ इक्वालिटी एंड ऑल दैट इज ऑफ कोर्स अफेक्टिंग दिस फैक्टर? आई मीन हम Uh, कहीं ना कहीं वो compete कर रहे हैं, नॉट ओनली इन अ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बट समहाउ ट्राइंग टू शो कि वी कैन आल्सो डू दिस व्हाट अ मैन डज. I would, feminism is a very simplistic way of looking at that, and I don't think that should be the factor. Yes, but whether you are a man or or a woman, these risk factors should be avoided. Okay, there is nothing you can do. Chalo, abhi, like I'll go because we are contemporary, like we are the present generation, me and you, and people who are going to be listening to us right now are also belonging to the same generation. So let us go with practical. मतलब एक डॉक्टर के हिसाब से, if I am going to tell you that आप स्मोक नहीं करेंगे, आप अल्कोहल नहीं लेंगे, आप रोज एक्सरसाइज करेंगे, आप तला हुआ नहीं खाएंगे, आप बाहर नहीं खाएंगे, आप पिज्जा नहीं खाएंगे, आप बर्गर नहीं खाएंगे, आप चॉकलेट नहीं खाएंगे, आप कॉफी नहीं पिएंगे, आप बहुत ज्यादा चाय नहीं पिएंगे, आप तीखा तला हुआ नहीं खाएंगे. तो दीज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी अडॉप्टेड बिकॉज ये एडवाइस तो सबको पता है नाउ. मतलब 10th standard की एनसीईआरटी की स्कूल बुक भी एडवाइस देती है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, विच इज अ गुड थिंग. But in practical world, we do not follow this. So let us go to the traditional risk factors if we can go early. So smoking, any form of nicotine, whether it is through smoking or through tobacco, is no. मतलब आज तक की कोई स्टडी ने ऐसा प्रूव नहीं किया है कि स्मोकिंग इज ओके. अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्मोकिंग को आप देखते हैं. सो देर आर लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स जो मतलब वीड इज सेफर देन स्मोकिंग के. मैं तो वीड ले रहा Yeah, हूँ, मुझे even we don't do cigarettes, but we do hookah. That is coming. मतलब मैं हुक्का कर रहा हूँ या मैं वीड ले रहा हूँ तो मैं स्मोकिंग नहीं कर रहा. सो मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि हाउ डू टेक, मैंने एक चूहे मारने की दवा पी ली पर मैंने इतनी पॉइजनस नहीं पी, तो मैं मरने तो वाला हूं पर थोड़ा लेट मरूंगा. सो दैट इज नॉट अ जस्टिफिकेशन. सो Right, एनी right. फॉर्म ऑफ निकोटिन इज नॉट जस्टिफाइड वॉट एवर इट इज. इन टर्म्स ऑफ practical sense, which are the worst is traditional cigarette is worst.
lesser is your hookahs, but the problem you have to understand कि जब आप हुक्का ले रहे हैं तो आप 30 minutes तक स्मोक कर रहे हैं या 1 hour Yes, तक yes. कितनी बार स्मोक करें, सो यू आर इक्विवेलेंटली स्मोकिंग एज मच एज 5 cigarettes। और Okay. फिर आप अगर ऐसा खुद को ट्रेडिशन ऐसा बोलेंगे कि मैंने तो हुक्का लिया है, तो हाँ, अगर आप 2 puff हुक्के के लेंगे और 2 puff सिगरेट्स के लेंगे तो सिगरेट विल हार्म अ लिटिल लेस, हुक्का विल हार्म अ लिटिल लेस, क्योंकि उसका जो वाटर होता है दैट टेक्स अवे अ लॉट Hmm. ऑफ chemicals. But that does not happen now. We do it for hours Hours, actually. hours. So that is actually you are harming yourself even more. And the second thing is, अगर वो जो न्यू केमिकल्स जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, दोज आर कार्सिनोजेनिक केमिकल्स। निकोटीन तो फिर भी आपके बॉडी में जा रहा है बिकॉज दैट इज द ओनली रीजन यू आर टेकिंग इट, क्योंकि वही आपको एंजॉयमेंट दे रहा है। तो हार्ट के लिए Right. निकोटीन नुकसान कर रहा है, नॉट द कार्सिनोजेनिक थिंग्स। सो एनी फॉर्म ऑफ स्मोकिंग और टोबैको इज हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। इन टर्म्स ऑफ अल्कोहल, क्योंकि वी लिव इन टू अ ड्राई स्टेट, हम लोग में जब अल्कोहल कंज्यूम होता है गुजरात में, तो दैट इज ऑलवेज बिंज ड्रिंकिंग। मतलब आप 1 महीने में आप एक बार अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं और आप वो पूरी बॉटल खत्म करके जा रहे हैं, जैसे कि आपका पुलिसमैन Yes. गोइंग टू कम टू योर हाउस। सो दैट इज नॉट द राइट फॉर्म ऑफ कंज्यूमिंग अल्कोहल। अल्कोहल मेडिकली इज नॉट अ प्रॉब्लम, मतलब इफ यू टेक टिल अ ड्रिंक लाइक वन 30 ml or 45 something ml, like that. 35 or 40 ml, it is actually good for your health. But the problem in our generation or even in Gujarat is people do not limit themselves to that kind But of is drinking. 30 ml, 45 ml every day is fine? I mean, Medically, when yes. we say, like, people come to me and they ask, हमें तो drink बिना नहीं चलता, and I advise them it is okay once a week you take 30, 45 ml, but they take it every day. Then I believe Uh, it is same. the Slow poisoning medically, हो गया. medically, it is not a problem. Your liver is well equipped to metabolize that kind of alcohol. So, in moderation, medically, it is not a problem. But the problem is it never stops to that 35 ml. Alcohol डिपेंडेंस इंक्रीज होता है क्योंकि इट कॉजेज फिजिकल डिपेंडेंस। मतलब जो आपको हैप्पीनेस के लिए या जो आप गम भुलाने के लिए 35-40 ml रोज ले रहे हैं, ट्रस्ट मी, अ पर्सन उस क्रोनिकली टेकिंग अल्कोहल, उसका नेक्स्ट ईयर तक वो 2 ड्रिंक हो जाएगा, फिर 3 ड्रिंक हो जाएगा, एंड इट Yeah, विल yeah. कीप फिर ऑन पूरा इंक्रीजिंग bottle ही ओवर द हो पीरियड जाता ऑफ। है. There is no end to this habits. Yes, एंड ट्रस्ट yes. मी, देयर आर Absolutely. लॉट ऑफ पीपल। आप अगर सूरत सिविल हॉस्पिटल में जाएंगे तो वी हैव मोर सिरोसिस ऑफ लिवर ड्यू टू अल्कोहल इन ड्राई स्टेट एज कम्पेयर टू महाराष्ट्र। Yes, yes, this is right because I've seen a lot of alcohol in Surat more than what we see in Mumbai. So agree to that point. Now coming to the next is, a lot of people have a habit of taking aspirin for a longer period of time, thinking कि aspirin लेने से हमारा cardiac, health better रहेगा या we can prevent the heart attacks. How you think this is okay to do it, So now or let does us it come. actually makes any sense? Present as per the guidelines, प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ एस्पिरिन हैज नो रोल। मतलब आप एस्पिरिन वैसे ही ले रहे हैं, तो मतलब मेडिकली हम देखें या गाइडलाइंस या देखें या फिर एविडेंस देखें तो इट डजंट हैव अ रोल। तो ये जो एस्पिरिन लेने का हमारे में कैसे आया, सो दैट वाज फोमो। मतलब इफ यू आर इन यूएस एंड इफ यू आर अ डायबिटिक पेशेंट, तो आपको 50 इयर्स पे दे विल स्टार्ट यू ऑन 81 मिलीग्राम ऑफ बेबी एस्पिरिन। तो वो लोग वहां पे ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज यूएस और यूके, द हेल्थ इज टेकन केयर बाय द गवर्नमेंट, तो उन्हें प्राइमरी प्रोफाइल एक्सेस देना ज्यादा चीप पड़ता है। कि आप अगर 10 लोगों में से या 100 में से एक जन को भी हार्ट अटैक प्रिवेंट हुआ तो द गवर्नमेंट विल सेव ऑन मनी। सो their recommendations are based on a completely different scenario. Because testing there is very costly. Doing a 2D echocardiography in US is around 35-40,000 rupees, and doing a TMT is even more costlier. So मतलब आप खाली Right. routine ECG echo TMT करते हैं तो you will cross 1 lakh rupee in terms of Indian rupees. So giving aspirin for 10 years is cheaper than just doing tests. While in India, that is not the case. So if you have So it is more becoming like I have a relative in US and if they say कि हमारे यहाँ पे ऐसा होता है and we start popping in pills. true, uh, that is A lot how of it people has do happened. that. वहाँ पे ये advice हुआ है and US का डॉक्टर advice कर रहा है तो हमें तो करना ही करना है. So that is the reason why, मतलब उनके recommendations are based on a different social reason rather than medical reason. एक Yeah. ही मतलब 2 substrates हैं जहां पे प्राइमरी प्रोफाइल एक्सिस, अगर आप, मैंने कहा इंडिया में इट इज ऑलवेज चीपर टू डायग्नोस द प्रॉब्लम। हमारे क्यों डॉक्टर्स पे ट्रस्ट नहीं है
वो इसलिए कि मतलब व्हेन यू गो टू अ हॉस्पिटल वहां आपका ऑपरेशन हो जाएगा. सो दैट इज नॉट द प्राइमरी एम. अगर आप एक अच्छा डायग्नोसिस कर पाते हैं देन यू नो यू हैव अ रिस्क फैक्टर, यू डोंट हैव अ रिस्क फैक्टर. मतलब अगर आपको ये प्रॉब्लम है, अगर आपको 30% प्लाक है तो आपको एस्पिरिन लेना है. सो द रिस्क बेनिफिट इज ऑलवेज इन फेवर ऑफ बेनिफिट. पर आपको कुछ नहीं है और आप 45 ईयर्स से नेक्स्ट 30 ईयर्स तक लेने वाले हैं, सो दैट हैज इट्स ओन साइड इफेक्ट. लाइक एस्पिरिन, पीपल ऑन एस्पिरिन मोर देन 5-7 years causes gastric erosions और bleed होता है, हीमोग्लोबिन नीचे जाता है. So aspirin per se also has its own problem. खाली दो substrate है. If you are diabetic for a long period of time and you have kidney issues, so CKD and diabetes and 50 years of age, और आपके पास को रिसोर्सेज नहीं है जानने के लिए कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, देन यू कैन टेक इट एज अ सेफर ऑप्शन. मतलब आप कोई गांव में है जहां आपके पास रिसोर्सेज नहीं है और आपके पास ये ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स है, then you can do. Otherwise, in a normal population, as per recommendations, primary prophylaxis of aspirin is not justified. Yes, doctors is a must see. राइट और आप It's जाएंगे easier. लाइक डॉक्टर प्रियांक सेड आपका ऑपरेशन डायरेक्टली नहीं होगा. यू इफ यू गो दैट लेटली, आई मीन सी आप भी प्रोलॉन्ग कर रहे हैं एंड इफ यू गो इन दैट कंडीशन यू माइट, So राइट. that is what लॉट the ऑफ अस डू दैट. Indians do that. इट इज हमारा ट्रेडिशनल. मैंने कहा हम लोग इनो ट्राई करेंगे और एक दो दवाई ट्राई करेंगे, उल्टा लटकने का ट्राई करेंगे और फिर भी कुछ हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, देन यू गो एंड देन यू एक्सपेक्ट कि कुछ नहीं होना इज नॉट जस्टिफाइड. मतलब या इवन ये तो हमने कोविड में भी देख लिया कितना घर पे इलाज हुआ एंड बाद में कितना एक्सट्रीम हुआ और कितने लोगों को हमने खोया. प्रियंक, वन मोर थिंग, अ लॉट ऑफ पीपल आस्क कि फीमेल्स टेक कॉन्ट्रासेप्टिव्स ओसीपीज फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, यू नो, डज इट इन अ लॉन्ग रन अफेक्ट्स द हार्ट हेल्थ ऑफ अभी फीमेल्स इफ दे आर ऑन ओसीपीज? सो आई पुट इट इन 2 words. सबसे पहले जो ओसी पिल्स होते थे इन द अर्ली पार्ट ऑफ 80s जब इंट्रोड्यूस हुए थे, 80s और 90s, तो देवर हाई एस्ट्रोजन कंटेंट. मतलब आपको समझने के लिए हाई हार्मोनल कंटेंट्स था. तो उन जो वो जो जनरेशन की ओसी पिल्स थी, दे फाउंड के इन पेशेंट्स में क्लॉटिंग का टेंडेंसी बढ़ जाता है, उनका रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक इंक्रीजेस. So over the period of time, the new generation OC pills, which most of the people who are going to take, are low estrogen pills. So they do not cause as many problems of this clotting as the old generation used to cause. Or second important, OC pills are usually taken by younger people, like people in their 20s and 30s when you do not want babies. तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ट्रेडिशनली हार्ट के दूसरे रिस्क फैक्टर्स नहीं होते. एट दैट पॉइंट यू आर नॉट डायबिटिक, यू आर नॉट हाइपरटेंसिव, यू आर नॉट रियली ओबीज. तो प्रैक्टिकल सेंस में मैं ऐसा नहीं कहना चाहूँ. मतलब ओसी पिल्स आपके हार्ट के क्लॉटिंग का चांसेस बढ़ाते हैं, पर जो नया जनरेशन के ओसी पिल्स है दे आर नॉट एज बैड एज दे यूज्ड टू be previously. But at the same point of time, I don't want people to take that wrong message कि OC pills मैं बंद कर दूं, because any other form of contraception has its own problems. आप कॉपर्टी लगाते हैं तो there are chances of infection in Indian sanity. दूसरे मतलब pregnancy is the biggest problem if that happens. So it should not go it के the OC pill is being given to you with a specific benefit and the risk is far less than the benefit. समथिंग कि अगर जिन्हें ये लगता है या वो डर रहे हैं तो इज देयर अ रूटीन चेकअप और सम टेस्ट टू गो फॉर आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम? एज आई सेड, लाइक इफ यू आर ओबीज, दो चीज. मतलब ट्रेडिशनली एक आप ओबीज हैं और आपको फैमिली हिस्ट्री है. इफ यू आर इन योर 30s और एज आई सेड इफ यू आर स्मोकिंग, मतलब आपके पास दूसरे ट्रेडिशनल फैक्टर्स भी हैं, तो फिर यू शुड नॉट कंटिन्यू ओसी पिल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि इफ यू आर प्लानिंग कि अगर दिस इज अ टेम्पररी मेजर, लाइक अ न्यूली वेड कपल, इफ दे डू नॉट वांट टू किल kid till they achieve financial independence, so that is a period of 1 year or 2 years. So utne time ke liye you can take OC pill. It should not be for years together. Matlab shorter. The OC pill problem with clotting is the longer duration. So if you can take it till you require it, till you can get a more permanent solution or something else. And I think men here should also contribute, because contraceptive methods for men is far less riskier than women. मतलब the onus should not be on a woman के तुझे pregnant नहीं होना, मतलब मुझे उसे pregnant नहीं करना. That should be the shifting thing. पर इसके लिए माइंड शिफ्ट आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड अभी एज इंडियंस आई डोंट थिंक दे आर मेंटली दैट ग्रूम्ड even in today's world. So we have to groom them rather than giving them alternative, because that is how we will grow as a society.
Yes, absolutely, absolutely. So, can you tell me few signs and symptoms जिसको if होता है तो at least MD physician or a cardiologist is a must see rather than taking ENO या फिर मेरा बीपी लो हो गया होगा थोड़ा नींबू पानी पी लेता हूँ काइंड ऑफ कोई मैंने ऐसे भी लोग देखे जो वाइटल जेड पीते हैं. So those some signs and symptoms which should be considered and a doctor is a must see. ओके, तो अमानत, सबसे पहले, इससे पहले भी मैंने कभी कहीं कहा है कि योर बॉडी ऑलवेज स्पीक्स टू यू. ये सब टेस्ट है, ये डॉक्टर्स है, दे हैव कम इन लास्ट 50-100 years. सो यू विल ऑलवेज कम टू नो कि मेरी बॉडी में कुछ अलग है. मतलब कल मुझे कुछ नहीं था और आज मेरा बॉडी कुछ अलग है. सो फर्स्ट इज यू विल हैव टू आइडेंटिफाई दैट. यू विल हैव टू अलाउ योर बॉडी स्पीक टू यू. यू कैन नॉट गिव योर ओन ऑल्टरनेटिव्स के कल मैं बहुत थक गया था, कल मैंने ज्यादा खा लिया, कल मैंने बैंगन खा लिया, कल मैंने खाना नहीं खाया. सो दिस काइंड ऑफ वी शुड नॉट जस्टिफाई अवर ओन प्रॉब्लम्स. सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है एक्सेप्टेंस. स्ट्रोक और हार्ट अटैक ये हमेशा सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक क्यों होता है? क्योंकि वो सडनली आता है. मतलब यू वुड हैव, एवरीवन विल हैव समवन इन देयर फैमिली के कल रात के डिनर पे सब साथ में थे और सुबह अचानक और ऑब्यूचरी में उसका नाम पढ़ लिया. सो दीज थिंग्स आर सडन इन ऑनसेट और हमारी तब तक जिंदगी एकदम नॉर्मल जारी होती है. सो दैट इज द रीजन. वो चीज एक्सेप्टेंस के मतलब कल मैं नॉर्मल था, कल मैंने इतना वॉक किया, कल ये किया, ऐसा किया और आज सुबह मुझे क्यों दर्द हुआ? तो ये एसिडिटी है. सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. यू हैव टू एक्सेप्ट कि ये मुझे हो सकता है. मतलब वो किसी को भी हो सकता है. अगर वो धीरू भाई अंबानी को हुआ तो वो तुम्हें भी हो ही सकता है. मतलब यू हैव टू एक्सेप्ट दैट फर्स्ट. द सेकंड, नाउ अबाउट, सबको पता है कि जो चेस्ट पे किसी भारीपन जो होता है दैट इज अ साइन ऑफ हार्ट अटैक. दैट वी ऑल नो. मतलब अगर ऐसा होता है तो मोस्ट ऑफ द पीपल कम. नाउ मेनी टाइम्स जब सबसे पहला सिम्टम होता है व्हेन यू वॉक, अगर आप चल रहे हैं और चलने के बाद यू फील हेवीनेस इन योर चेस्ट विच इज रेडिएटिंग, मतलब एक आर्म में जा रहा है. मेनी टाइम्स इट कैन जस्ट कॉज जॉ पेन. मतलब आप चल रहे हैं और जॉ में दर्द कर रहा है. अगर कोई भी सिम्टम एक्सर्शन पे आ रहा है तो वो हार्ट और लंग के रिलेटेड है. मतलब आपकी एसिडिटी कभी चलने पे बढ़ेगी नहीं, रेदर एसिडिटी कम होनी चाहिए. तो अगर आपको कोई भी पेन या चेस्ट पेन कुछ काम है तो अगर मैं चढ़ के ऊपर जा रहा हूँ तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो दैट इज हार्ट रिलेटेड. सो एनी सिम्टम विच हैपन्स ऑन एक्सर्शन गोज टुवर्ड्स हार्ट. एज आई सेड, जो मैंने कॉमनली लास्ट 1 या 2 साल में मिस इंटरप्रिटेशन देखे हैं वो ये है कि जॉ पेन होता है तो जॉ पेन इज मेनी वेरी कैरेक्टरिस्टिक हार्ट रिलेटेड. फिर कितनी बार पेन जो रेडिएट कर रहा है, मतलब एक जगह पे नहीं है. इफ योर पेन इज स्वीट एंड इट इज लोकलाइज टू वन प्लेस तो इट इज प्रोबेबली नॉट कार्डियक, पर वो रेडिएट हो रहा है कि पहले यहाँ था, फिर हाथ में जा रहा है, दूसरे हाथ में जा रहा है. तो वो चीज हार्ट के रिलेटेड है. मेनी अ टाइम्स जो हार्ट की नीचे वाली आर्टरी होती है, द राइट साइड, तो दैट विल प्रेजेंट एज वॉमिटिंग एंड गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस. सो वो एकदम कैरेक्टरिस्टिक. एक कितनी बार वी हैव हैड डॉक्टर्स हु हैव मिसइंटरप्रेटेड देयर सिम्टम्स, नॉट लेमैन. वी हैव, सूरत हैज लॉस्ट अ वेरी प्रोमिनेंट कार्डियक सर्जन 10 years बिफोर इन हार्ट अटैक. मतलब खुद कार्डियक सर्जन थे एंड ही मिस इंटरप्रेटेड. सो मेनी टाइम्स दिस कैरेक्टरिस्टिक गैस्ट्रिक सिम्टम्स, मतलब वॉमिटिंग है या एब्डोमिनल पेन है या एपिगैस्ट्रिक पेन है, वो भी हार्ट के वजह से हो सकता है. कभी कभी पैल्पिटेशन, अचानक से पर्सपिरेशन हो जाना, वो डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत कॉमन होता है. दे हैव साइलेंट हार्ट अटैक और व्हाट यू कॉल साइलेंट मायोकार्डियल इस्कीमिया. तो उन्हें पेन नहीं होगा, उन्हें पर्सपिरेशन होगा, चलने पे ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी. तो ये सब जो सिम्टम्स है वो हार्ट के हो सकते हैं. राइट. अगर सो जैसे अभी कोविड में चेस्ट फिजियोथेरेपी हैज टेकन अ लॉट ऑफ हाइप. नाउ पीपल आर अवेयर कि चेस्ट फिजियोथेरेपी जैसी भी चीजें होती है एंड आई बिलीव लाइक वी हैड मेट वंस एंड वी स्पोक अबाउट इट. तो हाउ मच यू थिंक कि बंदे को कौन सी एज से ये लेना चाहिए या फिर ओनली इफ यू आर अ कार्डियक पेशेंट देन ओनली यू शुड स्टार्ट एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज एंड ये किसको आप ज्यादा रेफर करेंगे? Amanat, you would be knowing, like, I was trained in Bombay for my cardiology. So post-operative physiotherapy is given to any patient who is discharged from the hospital after a heart attack. Matlab, he's been given a regimen. So that is part of treatment of every patient. And matlab, it's not, अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ है या हार्ट अटैक हुआ है तो उसके बाद when you go home, medicines लेने से साथ साथ rehabilitation is equivalently important. Yes. और that has to be offered to all patients, or rather after
me coming here, even जब महावीर में practice हो रहा है, even महावीर has developed a good post-op physiotherapy unit for the heart patients. हमारे लिए चीज कैसा है कि ये तो मैं खुद कर सकता हूँ, ये तो मैं कर लूंगा, and that is where they don't do. But Modern Surat in generation, general does not has much awareness of chest physiotherapy as far as I know. Surat does not have awareness about rehabilitation at all. The Yes. problem in Surtis or in present generation is instant gratification. कि मुझे दर्द हो रहा है और मैं पैरासिटामोल ले लेता हूँ और मेरा दर्द चला जाता है. हम लोग ज्यादा एंजियोप्लास्टी क्यों करते हैं? क्योंकि उसका दर्द एक दिन में उसे चला जाना चाहिए. Medicine can equivalently work, but these are slow process, and that is the reason the acceptance is not good. But the thing is, they are slow process, but they are long-lasting process. I have had patients who have got 20% heart pumping and 80 years, and they run marathon because they have rehabilitated themselves well. आपको समझने के लिए आपके आजू बाजू में होगा ना कि एक जन ऐसा है कि रोज एक ही रोटी खाता है या 2 रोटी ही खाता है और पूरे दिन मेहनत से काम करता है. Because the body metabolism is so beautifully made that it will adapt to whatever you give it. तो आपका हार्ट वीक है या आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, you adapt it through rehabilitation properly, आप सबसे वीकेस्ट हार्ट से भी नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं. So medicine is a short-term plan till you rehabilitate your lives well. Yes. Actually, most of the people that I have come across till now, if once अगर minor cardiac arrest भी हुआ है, then the family is always like नहीं 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 ये heart patient है, इनको ये नहीं करना है, इनको ये नहीं करना है, इनको ये नहीं करना. Ultimately, I believe their muscle is weakened because they are उनको वो करने ही नहीं देते. But that is where the role of a certified and a good person comes in. क्योंकि अगर मैंने इसलिए एज आई सेड आई हैव मेड इट अ पॉइंट कि मेरा सूरत का कोई भी पेशेंट डिस्चार्ज होता है उससे पहले दे आर गिवन अ डायटिशियंस रेफरेंस इन द हॉस्पिटल एंड दे आर गिवन अ फिजियोथेरेपी. हम अभी भी उस एज में जीते हैं जहाँ ये वाली आंटी ने ऐसा किया, वो वाली आंटी को ऐसा हुआ, मेरे दिल्ली वाले फूफा को ये प्रॉब्लम हो गया चलने से. लिव इन and information comes from a credible source. आज मैंने किसी का ऑपरेशन किया और एज अ ट्रीटिंग कार्डियोलॉजिस्ट मैं उसे अगर ऐसा कहता हूँ नहीं आप फिजियोथेरेपी पे जाइए या यू शुड डू दिस, तो दे विल गो. एंड आई थिंक दैट इज द रोल वेयर डॉक्टर्स एंड सोशल इन्फ्लुएंसर्स शुड put it across to the society what is right and what is not right. Yes. Awareness is nowadays very important. A lot of problems can be, हम उसको प्रिवेल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं. So, Priyanka, I also wanted to know if a person has a cardiac problem in a long run, क्या उसका kidney compromise हो सकता है because he is a cardiac patient या they are not related at all? See, the body is one. Any organ is going to affect another organ, and that is the truth. And that is what we have learned through COVID. Okay, lungs weak hote hain, and then they have heart problems, and they have kidney problem, because ultimately each organ is supporting another organ. And rather, कार्डियोरीनल सिंड्रोम इज एन वेल नोन एंटाइटी, क्योंकि एक वीक हार्ट किडनी को कम खून पहुंचाएगा. किडनी विल परसीव इट एज के कम खून पहुंचना किडनी के लिए वाटर डिप्लीशन है, क्योंकि ये सब हार्ट अटैक्स होने से पहले किडनी को जब भी कम खून पहुंचता था दैट वाज ड्यूरिंग वॉर्स एंड फेमिन, मतलब जहां बॉडी में इनफ पानी ही नहीं गया है, तो किडनी विल रिटेन वाटर और वो ज्यादा वाटर विल अगेन harm the heart, and that cycle will keep on going. So a heart patient, particularly if the pumping of the heart is on the lower side, is going to develop a kidney issue over the period of time. And that is the reason he has to be extra cautious. Similarly, a kidney patient... Yeah. Please. Similarly, kidney patients are more prone to develop heart problems. मतलब CKD जो chronic kidney मतलब अगर कोई patient dialysis पे है, so 70% of the kidney patients die not because of kidney but because of a heart problem, and that is the bitter truth. So they both are closely related, and a weak heart is going to cause a weak kidney over the period of time. And so that is where again your prevention makes a role, because if you know that, you will keep on monitoring things and make sure that doesn't happen. So if somebody is a cardiac patient, he also needs to go and see a nephrologist or a cardiologist suffice. It is not necessary. Similarly, a kidney patient need not see a cardiologist. Okay, see,
a cardiologist or a nephrologist, everyone has done their MD medicine before that. So they all know Absolutely. how to treat things. And we should not add to the cost burden of a patient by seeing multiple doctors. But yes, when your kidney doctor feels that no, the heart is involved, you should go to see a cardiologist. When your heart doctor feels the kidney is involved, you should see a nephrologist. Heart, एक वीक हार्ट और कितनी बार हार्ट के लिए जो ट्रीटमेंट मेडिसिन चल रही है दे आल्सो अफेक्ट किडनीज सो मोस्ट ऑफ द कार्डियोलॉजिस्ट विल डू योर kidney function test once in 6 months or a year to make sure that you are okay. ओके ऑल्सो मुझे ये बताइए आजकल कैसे हो गया है कि लॉट ऑफ पीपल हैज अ हैबिट कि वो अपना लिपिड प्रोफाइल चेक करवाते ही रहते हैं वेरी ऑफन 6 मंथली तो वो चेक करवाते हैं सो समटाइम्स इट सो हैपेंस दैट एलडीएल लेवल्स आर रियली हाई सो दे स्टार्ट टेकिंग स्टैटिन्स ऑन बाय देयर ओन सो मतलब इसको कैसे लिया जाए आजकल सेल्फ ट्रीटमेंट इज अ लॉट अदरवाइज कुछ नहीं होता है तो हमारी गली के नुक्कड़ पे एक कोई भी बीएचएमएस कोई भी बैठा है वो दे रहा है तो कितना एंटरटेन करना चाहिए आई मीन स्टैटिन्स व्हेन अ लिटिल ऑफ अ डिफरेंस इन द कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट और यू Now, रिलेटेड रियली टू दिस कार्डियक इशू now that is what I want to come across. मतलब I as a doctor मेरा ये statin पे थोड़ा phase है. My bad cholesterol is more than 150. I am still not taking statin. So that is how I would put across. The thing is, I'll just 7 years before, while I was doing my MD, at that point of time, the guidelines were 190, the bad cholesterol. I'm not talking about the total cholesterol. जो LDL levels है, जो आपके bad cholesterol है, that till 190 for general population, आपके रिस्क फैक्टर्स मतलब मॉडरेट जैसे है तो 160 से नीचे है और एकदम लो रिस्क फैक्टर मतलब हाई रिस्क फैक्टर्स है तो 130 से नीचे है which has been now changed to 170. So या practically over the last 5-7 decades, 5-7 years, the drastic fall in the number of patients who should take statin has increased threefolds. मतलब या प्रैक्टिकल आप रैंडमली अपने बिल्डिंग में सभी का लिपिड प्रोफाइल कराएंगे और ट्रस्ट मी मैं इवन 20 years से ऊपर की बात कर रहा हूँ मतलब 20 years 70 years या 80 years के जितने प्रोफाइल lipids statins दे दें so that is not the primary aim as I said what is your risk factor is important. Yes, actually, what I see it the cholesterol profile when people come with the lipid profile to us, if their LDL, VLDL is a little raised, so we are not much bothered because sometimes the inflammation in the body and this, the raised cholesterol is trying to save actually you from the inflammation. It is trying to curb the inflammation. So unless the triglycerides are not really very high, we at personally are not much bothered with it because we know कि ये over the period of time we can take care of this. Do you really think where I go this way is right? I'll just put it. Indians have a different dyslipidemia profile as compared to Western population. Western population में LDL is the only worst thing. जब Indian population में bad cholesterol ज्यादा होना मतलब LDL ज्यादा होना, triglycerides ज्यादा होना और good cholesterol कम होना. That is the characteristic lipid profile that you would have seen in most of the patients. There are a lot of Yes. patients जिसमें आप ये statin लेंगे तो statin is only going to have that much effect on your bad cholesterol. Your triglycerides or HDL will still need improvement. आप lipid profile Yes. कराइए उसमें problem नहीं है. But the lipid profile should be a marker कि आप अपनी lifestyle change करें, not that you take a pill. That is the primary thing because it's not statin is a bad drug. Again, I do not want it to go across के लोग ऐसा सोचे कि नहीं statin मेरे डॉक्टर ने क्योंकि वो लोग कल जाके अपने डॉक्टर्स को ऐसा बोलेंगे कि डॉक्टर मोदी और अमानत ने ऐसा बोला statin लेना I know ये बहुत जरूरी बार नहीं होता है. है. So that should not Yeah, happen. yeah. Let the doctor decide is Yeah, the let your best thing. doctor decide what is important. मतलब उसे अगर लगता है कि इससे आपका रिस्क ज्यादा है जैसे मैंने कहा एक पेरेंट है जिसका 40 years में हार्ट अटैक हुआ है और उसका 35 years का बच्चा है और उसका लिपिड प्रोफाइल वर्स है एंड ही स्मोक्स एंड ही इज ओबीज और वो कभी एक्सरसाइज नहीं करने जाता तो गिविंग अ स्टैटिन टू दैट पेशेंट इज गुड बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप 35 years के हैं आप एकदम एक्टिव इंसान है आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है फैमिली हिस्ट्री नहीं है दूसरा कुछ नहीं है तो यू कैन ऑलवेज वेट एंड like give a trial to exercise give a trial to diet before taking medicines.
डॉक्टर्स एक यस, ये भी सोसाइटी को परफेक्ट है। वैसे ही मिलते हैं जो पेशेंट होते हैं। मतलब आज अगर आप अपने डॉक्टर को जाके बोलेंगे कि नहीं सर ये मेरा लिपिड बुरा है पर मैं नेक्स्ट 6 महीने में खाना कंट्रोल करूंगा, डाइट कंट्रोल करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, तो ही विल नॉट गिव यू अ पिल। और उसे पता है कि उसका पेशेंट ही नालायक है और वो कुछ नहीं करने वाला है, दैट इज द रीजन। मतलब द सोसाइटी Again, विल गेट अ people डॉक्टर are ही looking for डिजर्व। quick fixes also. Na nowadays, everybody want quick fix. व्हाई आर यू गोइंग फॉर अ बेरियाट्रिक सर्जरी? बिकॉज यू वांट अ क्विक फिक्स। मतलब Exactly. मुकेश अंबानी के बच्चे बच्चे को भी मेहनत करके ही अपना वजन कम करना पड़ा। लाइक ही हैड टू वर्क, ही हैड टू फॉलो Yes, डाइट्स। yes, तो absolutely. देयर We आर, see a lot of people coming from 150 to 70 also. It takes a little more time. But again, they don't understand with the bariatric also, they are going to take a year time. it's not your there, see I'm again not against, but anything which is more holistic is better। जो आप Yes, yes, जो yes. जो टाइम लेने वाला है वो आपको लॉन्ग लास्ट भी करेगा। मतलब इफ यू हैव लॉस्ट वेट थ्रू एक्सरसाइज एंड डाइट, वो वेट वापस गेन नहीं होगा। अगर मैं आपको Yes, एक दवाई देके वेट लॉस करा रहा हूँ तो वो आपकी दवाई खत्म होगी, आपका वेट वापस वहीं के वहीं पहुंचने वाला है। सो एनीथिंग फॉर विच यू हैव वर्क इज गोइंग टू लास्ट लॉन्ग। yes. So on that मुझे एक और चीज पूछनी है, like omega 3 is very much current, आप देखेंगे तो everybody and anybody is taking omega 3 supplements. Of course it's a very good anti-inflammatory, it's very good antioxidant. लेकिन लोग आजकल जैसे लिपिड प्रोफाइल कॉम्प्रोमाइज होता है, दे स्टार्ट टेकिंग ओमेगा 3. So again, the reason of omega 3 is ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे आप समझ रहे हैं कि हार्ट प्रॉब्लम सबसे पहले वो लोग लिपिड्स पे डाले थे, फिर शुगर्स पे डाले, और नाउ द प्रेजेंट जनरेशन का जो भी प्रॉब्लम है, वेदर इट इज कैंसर और हार्ट रिलेटेड और स्ट्रोक, दे आर ऑल inflammatory issues and that is medically proved. It's not me who is saying this. Like chronic inflammation happening in our body, whether it is through food or other stress related issues, cause all these chronic modern problems. As you said, omega 3 fatty acid is used for its anti-inflammatory and antioxidant properties rather than using it for lipid profile. Yes. Statins, जो हमारे इंडियन का मैंने वो कहा, वी हैव अ प्रॉब्लम विथ हायर ट्राइग्लिसराइड एंड वी हैव अ प्रॉब्लम विथ लो एचडीएल। Statin does not help in treating those two things. Statin has a primary role on LDL cholesterol. It does Right. reduce your triglycerides and improve your HDL, but not to the extent it works on the LDL. So वहां पे omega 3 fatty acid का role है. Right. Second, because as Gujaratis or as we do not consume a lot, like natural source of omega 3 fatty acid is fish. So because we do not consume fish as a thing, people take it as supplement. Omega 3 और supplements. क्योंकि एक डॉक्टर को ऐसा है कि मतलब व्हाट इज द हार्म, मतलब ठीक है, लॉट आई डोंट प्रिस्क्राइब मच ऑफ ओमेगा 3 बिकॉज यू नीड टू गिव 2 grams ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड, दैट इज लाइक 4 capsules at least a day, Yes. and that's for Yes. primary profile access. So lot of patients, as you said, they come to me and they tell me that they are taking this as a supplement. As a doctor, because it is not harming, I don't have a problem, but again that is not a solution to your naturally occurring Your food body already has a property of inflammation. producing antioxidants. Yes. So one more thing, जैसे अभी पेंडेमिक चल रहा है, and now that we know, अब तो घर घर सबको पता है कि आपको कोरोना की सिम्टम्स आया है तो व्हाट ब्लड टेस्ट यू शुड बी डूइंग. सो डी डाइमर इज लाइक अ ट्रेंड. सबको चेक करना है अपना डी डाइमर. एंड फिर उससे पैनिक भी होने वाले लोग हैं, देन दे स्टार्ट टेकिंग द स्टेरॉइड बेस्ड इंजेक्शंस विद द लोकल डॉक्टर्स. मेरा डी डाइमर बढ़ गया है, चाहे सीआरपी उनका कंट्रोल में ही हो. सो डी डाइमर किनको चेक करना है, कब तक उसको मॉनिटर करना है, एंड कब इट इज जस्ट फाइन. So as I said, D-dimer is just one marker of procoagulant state. ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब पहली चीज के नॉर्मल डी डाइमर वाले भी पेशेंट्स हार्ट अटैक के साथ आए हैं मेरे पास पोस्ट कोविड, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि डी डाइमर, बट हाँ, बिकॉज इट इज नाउ एन इजीली अवेलेबल, और इंडिया में हमेशा पैनल सिस्टम चलता है। मतलब जो भी टेस्ट अवेलेबल हो वो हर पैथोलॉजी का लैब अब वो कोविड पैनल में आ गया है। सो अगर आपको यस. जरूरत है या नहीं हो रहा है, आपका वो टेस्ट हो जाएगा। जैसे आपका विटामिन डी हो जाता है हेल्थ चेकअप में और फिर वो कम होता है और आप उसे ट्रीट करते हैं। सो सिमिलरली अगर आपके रिस्क फैक्टर्स या कुछ नहीं है तो गाइडलाइंस
पहले दो चीज मैं कहना चाहूंगा कि डी डाइमर आप कब तक मॉनिटर करेंगे। तो अगर आपके 14 डेज में एक या दो बार तो कभी आपका टेस्ट हुआ होगा, अगर आपको कोविड पॉजिटिव है और आप किसी डॉक्टर के अंदर है, तो जनरली दे वुड डू इट ट्वाइस, वंस एट सिक्स फर्स्ट वीकेंड और वंस इन व्हेन यू कंप्लीट योर 14-15 डेज। तो अगर आपका ड्यूरिंग द एक्यूट फेज डी डाइमर नॉर्मल रहा है, तो आई हैव रेयरली सीन कि उनका एक महीने के बाद डी डाइमर बढ़ेगा। तो एक बार अगर आपका नॉर्मल ही रहा है, then you need not do it after 1 month or 2 months or 6 months, because it doesn't happen. The worst happens during the active COVID infection. उसके बाद तो वो over the period of time decrease ही होने वाला है। Right. अब बचता है कि मतलब एक बार अगर आपका एक्यूट फेज में नॉर्मल है तो आपको मॉनिटर करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका एक्यूट फेज में बहुत ज्यादा था, देन इफ यू आर ऑन एंटी कोएगुलेंट, तो कब वो एंटी कोएगुलेंट बंद करनी है उसके लिए आप डी डाइमर मॉनिटर कर सकते हैं। सो if you are taking just aspirin for that, again aspirin is not the best drug, उससे अच्छा कुछ नहीं लेना justified है, क्योंकि एस्पिरिन भी आजकल सब ले रहे हैं पोस्ट Yes, कोविड। तो वो भी एक चीज जस्टिफाइड नहीं है। पर इफ योर डी डाइमर वाज एट द हायर साइड जब आपको एक्टिव इन्फेक्शन हुआ था, तो यू शुड मॉनिटर इट टिल इट नॉर्मलाइजेस। जनरली इट वुड टेक 1 month to 3 months इन डिफरेंट पॉपुलेशन। और उसे बार बार मॉनिटर करने से दो इंपॉर्टेंट चीज, ऐसा नहीं होता कि जिसका डी डाइमर 10,000 है उसका रिस्क 5,000 डी डाइमर से डबल है। सो इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट वैल्यू विच मेक्स अ डिफरेंस। क्योंकि अगर आप एंटीकोएगुलेंट पे है और आपका आज का डी डाइमर 2,000 है और आप एक वीक के बाद कराएंगे तो वो 3,000 भी हो सकता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज द लेबोरेटरी, क्योंकि इफ यू चेंज द लेबोरेटरी, डी डाइमर वैल्यू डिपेंड्स अपॉन आपका सैंपल कितनी जल्दी प्रोसेस करा है। सो इफ यू गिव इट, मतलब आई हैव लॉट ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम द नियर बाई प्लेसेस ऑफ सूरत, तो उनका डी डाइट मतलब ये ब्लड सैंपल उनके मतलब नवसारी में जैसे लिया है या बारडोली में लिया है, एंड दैट सैंपल इज सेंट टू सूरत फॉर टेस्टिंग। तो वो जो 4 घंटे होंगे तो उसमें डी डाइमर आपका बढ़ा हुआ आएगा। सो इवन आजकल जब लोड ज्यादा था, या हर एक लेबोरेटरी का जैसे एक बड़ा लैब है उसका मेन मशीन अठवा गेट पे है और उसका एक ब्रांच रांदेर में है, एक ब्रांच वराछा में है, तो दोज आर कलेक्टिंग सेंटर्स जहां वो कलेक्ट करके यहाँ पे भेजेंगे। तो इफ दैट टाइम इंक्रीजेज, मतलब 2 घंटे 3 घंटे बाद आपका ब्लड सैंपलिंग के बाद टेस्ट होगा तो उसमें आपका डी डाइमर फॉल्सली एलिवेटेड भी हो सकता है। तो यू रियली नीड नॉट पैनिक अबाउट दैट। और आप अपने डॉक्टर से एक बार काउंसिल कर सकते हैं। अगर ही फील्स कि आपका रिस्क ज्यादा है तो ही विल पुट यू ऑन अ ब्लड थिनर। नहीं तो डी डाइमर पर से रेस्ड इज नॉट एन एब्सोल्यूट इंडिकेशन कि आपको कुछ होना है, बिकॉज आई हैव हैड इनफ नंबर ऑफ ब्लीडिंग्स एज वेल कि डी डाइमर के ज्यादा डी डाइमर के लिए पीपल हैव टेकन मेडिसिन एंड दे हैव हैड ब्लीडिंग्स एज वेल। सो इट इज एज ब्लड थिनर भी एक कोई वो अपना पैरासिटामोल नहीं है जो आप खुद से ले ले, बिकॉज But this was really informative, Priyank, because ये अभी बहुत misinformation चल रही थी about D-dimer and people were really monitoring it, like every week भी कराने वाले लोग देखे हैं, and you know just popping in the blood thinners वाले लोग भी थे. So you really cleared the air today. Again मुझे एक और चीज, अगर हम इतनी सारी बात कर रहे हैं कार्डियक की, तो आप कितना वैक्सीन प्रमोट करेंगे फॉर द कार्डियक पेशेंट्स, बिकॉज पीपल आर रियली panicking for no reason, like we are all vaccinated, कुछ हुआ नहीं है, somehow for some reason they don't want to go vaccine. So ये भी ऐसे करिए। मतलब मुझे आई थिंक इनफ डॉक्टर्स हैव सेड टू एवरीवन के वैक्सीनेशन करना, सभी ने बोल दिया। सो आई विल गिव दैट आंसर इन वन वर्ड। माय मॉम इज डायबिटिक, आई हैव गिवन वैक्सीन टू हर। आई हैव गिवन वैक्सीन टू माय 88-year-old नानी। I have given vaccine to my lactating wife, and I have taken the vaccines myself. So what more I can say? Yes, perfect. जब हम भी कहते हैं कि हम वैक्सीनेटेड बैठे हैं यहाँ पे, पर yes, this is important. People must in any way, unless your doctor says कि you might, which I do not think anybody will be telling you not to vaccinate yourself. Do vaccinate, guys. This is a need of an hour. So आपका ये जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, बिकॉज हार्ट पेशेंट्स आर वरीड मोर अबाउट गेटिंग वैक्सीनेटेड। तो आप समझे ना, वैक्सीन का सब लोग क्या प्रॉब्लम कह रहे हैं कि मुझे उससे क्लॉट हो जाते हैं। तो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हार्ट का पेशेंट तो ऑलरेडी ब्लड थिनर ले रहा है, तो यू आर एट अ सेफर प्लेस। और वही चीज, जितना रिस्क आपका वैक्सीनेशन के लिए ज्यादा है उतना ही रिस्क आपका कोविड इन्फेक्शन के लिए बढ़ जाता है। मतलब अगर आपको वैक्सीनेशन पे ये होना है तो कोविड इन्फेक्शन में तो इससे 10 गुना बुरा होने वाला है। तो why do you want to take that risk? And do you have an alternative? मतलब
यू डू नॉट इवन, मैंने सूरत का जो लॉकडाउन लास्ट टाइम फेल हुआ था और इस टाइम अचानक से यू वुड हैव सीन द वेव लास्टेड लेस, मतलब एक दिन Yes. बहुत ज्यादा केस थे और 15 दिन के बाद जीरो केस, बिकॉज पीपल सॉ Understood it out. पीपल गेटिंग सिक इन देयर ओन विंसिटी। तो वो जो डर से वो लोग चुपचाप घर पे बैठे रहे, उसके वजह से द साइकिल गॉट ब्रोकन। जब लास्ट वाला वेव था ना, तो दैट मतलब गवर्नमेंट कह के पुलिस को खड़ा कर करके द लॉकडाउन वाज स्टिल नॉट एज स्ट्रिंजेंट एज व्हाट पीपल देमसेल्व्स टू। So we are actually behaving like an irresponsible citizen. We have been, COVID has, because of like it, rather the second wave was not because of the virus but because of our irresponsibility. See, Irresponsibilities. lockdown has to be absolute, मतलब मैं समझा, मतलब अगर आप 4 जन का फैमिली है तो आप 2 साल के लिए या 10 साल के लिए घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे, फिर ना वो खाना खा लेने के लिए निकलेंगे, ना आप अपनी बाइक को घर पे अलाउ करेंगे। आप एक अपने घर के नीचे बंकर बनाएंगे और आप अंदर चले जाएंगे और 10 साल तक वहां से नहीं निकलेंगे, देन यू विल बी प्रोटेक्टेड आउट ऑफ कोविड, अगर 10 साल के बाद कोविड नहीं है। अगर आप ये नहीं कर सकते, देन यू विल हैव टू गो फॉर वैक्सीनेशन, यू डोंट हैव एन ऑल्टरनेटिव। मतलब अगर आपको बाहर जाना है या आपको किसी बाहर वाले इंसान, अगर आपको अपनी बाइक को घर पे बुलाना है अपना घर क्लीन करने के लिए, यू विल हैव टू गेट वैक्सीनेटेड, देयर इज नो Yes. ऑल्टरनेटिव। Also get your maids vaccinated, please. Yeah, and I think the Maid people सबसे should ज्यादा finance डरते हैं it for them. कि नहीं लेना है वाला. So Priyank, one more thing I want to know: is there any dietary restrictions? Because we plan a lot of cardiac patients ka diet also. So even I would like to know if there are things that we really need to restrict for a cardiac patient. uh, as I said, cardiac is always an end result of multiple comorbidities. मतलब whether the patient is diabetic, whether the patient is hypertensive, he or she is obese. So these factors play a role, क्योंकि cardiac is the end thing. आप बहुत कम पेशेंट्स को देखेंगे जिसे सीधा हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, मतलब दे ऑलवेज हैव द अदर ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स। सो योर डाइटरी एडवाइस विल फार डिपेंड अपॉन व्हाट द अदर रिस्ट्रिक्शंस आर। मतलब इफ यू आर हाइपरटेंसिव, तो यू शुड मेक श्योर दैट कि वो सॉल्ट का इंटेक कम होना चाहिए। सो अगर एक ही लाइन में इफ आई वांट टू गिव अ डाइट प्लान टू अ कार्डियक पेशेंट, इज सॉल्ट एंड शुगर शुड बी ऑन द लोअर साइड। अगर ये Yes. दो चीज आप कंट्रोल कर रहे हैं, देन इट इज फाइन। अबाउट लाइक आई एम अ प्रोपोनेंट ऑफ, मतलब अगर आप, इट्स नॉट, आई डोंट कर्टेल कोलेस्ट्रॉल एट ऑल। मतलब अगर आप घर का घी खा रहे हैं या घर का तेल खा रहे हैं, मतलब लेस तेल खा रहे हैं, so that is perfectly okay. Amanat, you would agree to that like, because ghee has mufas and pufas. They have unsaturated fatty acid in better quantity Yes. as compared to saturated. So ghee per se is not a problem. बाहर का जो घी होता है, that is your डालडा घी, so that is bad because इसीलिए बाहर का अगर खाना So खा रहे हैं हम तो ये Priyank, what you said ना, I actually advise people to have देसी घी जो घर पे बनाए and खाए. But a lot of people have maybe heard from ages or maybe उन्हें डॉक्टर भी एडवाइस करते, to be very honest, जैसे हमें डॉक्टर ने मना किया है, हमें तो बिल्कुल भी फैट्स खाने नहीं है, and they avoid it, which can actually benefit them. अब मैं इसके लिए, मतलब दैट इज मेरी भी मिस्टेक है। कैसा हो गया कि I'm talking in general because no, होता क्या है, to be very honest, when a dietitian is recommending something, they always know कि एक डॉक्टर ने बोल दिया था पहले से, कि ये नहीं खा सकते. एक डॉक्टर है ना, खुद को धीरे धीरे बहुत महान समझने लगता है। प्रॉब्लम कैसे होता है, बिकॉज यू आर ट्रीटिंग लाइक इन द मॉर्निंग यू ट्रीटेड एन हार्ट अटैक, नाउ दैट पेशेंट वाज गोइंग टू डाई इन सम मिनट्स if you No, would no, not I have don't done have something. those No, brain no, gains so, for you, no, and not no, enough that. no, no, just let me answer this in truth. तो अब जब पेशेंट मुझे पूछता है कि भाई अब मैं खाना क्या खाऊं, तो आई फील लाइक ये डम सा क्वेश्चन मुझे क्यों पूछा। सो आई हैव दिस फिक्स्ड कैसेट इन माय माइंड कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, विच आई हैव बीन सेइंग इट फॉर 5 years टुगेदर, और वो सबके लिए सेम ही है। एंड दैट इज द रीजन दिस मिस इन्फॉर्मेशन गोज इन, बिकॉज Yes. आई गिव अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। आई वॉज डूइंग माई एमडी, आई हैड एक यंग लड़का 7-8 साल का was admitted under me. If you can give me 30 seconds. Of So, course. this was a young guy who was admitted with jaundice. Okay, so he was admitted under me, or it was in civil hospital like where I used to study. तो उसकी राउंड्स में the mom would have asked कि मैं क्या खिलाऊं, तो मैंने बोला खिचड़ी खिलाओ, मतलब ड्यूरिंग जब वो एडमिट था। तो खिचड़ी खा, मतलब क्या खा सकता है, तो मैंने बोला खिचड़ी खा सकता है। सो ठीक है, फिर तो वो डिस्चार्ज हो गया। फिर वो 1.5 महीने के बाद मेरे फॉलोअप में वापस आया था कि भाई सब कुछ ठीक है ना, मतलब सब कुछ। तो उसकी मम्मी ने 1.5 महीने के बाद मुझे ऐसा पूछा कि सर अभी खिचड़ी के अलावा कुछ और खिलाओ।
Oh my So, God. For 30 days, all 1.5 महीना he was having only खिचड़ी. and that is how it is. मतलब you should think कि वो बंदे ने आपको कितना मतलब मन में गाली दिया मतलब होगा कि मुझे सिर्फ खिचड़ी ही खिला रहा. सो एक डॉक्टर के लिए दैट वाज सच अ बैड थिंग फॉर मी टू से कि भाई बिकॉज इट वाज सो इररिलेवेंट टू मी कि मैंने उसे ऐसा बोल दिया, बट फॉर दैट पेशेंट इट वाज एन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो उसने Yes. उसे उतना ही सीरियसली फॉलो किया. So I think as a responsible doctor, we should justify giving time to people and putting their doubts at rest. क्योंकि अगर मैंने Yes. जो पहले कहा कि हम लोग एक क्रेडिबल सोर्स से उन्हें अच्छा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे, इसीलिए वो लोग गूगल पे जा रहे, इसीलिए वो लोग आजू Yes. बाजू में पूछ रहे हैं. मतलब True this. मेरा 3 साल का बच्चा रात को दूध मम्मी से इसलिए मांगते हैं क्योंकि उसकी मैम ने उसे बोला है कि रात को दूध पीना है. सो इफ Yeah, yeah. बिकॉज And ही actually, नोज कि people मेरी मैम. also believe that we all have particular subjects, related to us. Like I cannot prescribe medicines. Same way, a doctor has a limited information, and nutrition is a very small part of his study. ट्रू ट्रू. But of course, जब patient जाता है तो वो डॉक्टर को ही सबसे पहला सवाल करेगा. So नो it should सो be well directed rather than directly giving the path. So now what I have learned over the period of time is to let the patient ask their doubts. मतलब मैं उसे ऐसा बोल देता हूँ कि ये खाना ये नहीं खाना, that doesn't go well. So it is always better कि if he has a doubt you ask me. And as I said, I have made it a rule. Like if my patient is spending 2 lakh rupees for an operation, uh, taking a diet consultant, taking a physiotherapy consult is not going to add to 1% of his total bill, but that is going to make sure कि उसको वापस 2 लाख खर्चना नहीं पड़े. And I Right. think that is more important. That is appreciated actually. So, last question for the day: is the heart disease, the cardiac disease, reversible or irreversible? Everything is reversible except aging. Okay, so it should be reported well on time. It should be consulted to a proper physician. You should know कि आपको गली के नुक्कड़ पे नया जाते हुए you have to consult an MD if you are really having some reports compromised, rather than waiting for a very long time, right? So it is like driving a car. You know that there is a pothole. अब आप एक बार खड्डे में गिर गए तो फिर तो डैमेज हो गया. मतलब अगर आपने उसे पहले देख लिया और ब्रेक मार ली तो फॉर एक्सीडेंट इज प्रिवेंटेड, तो आप वापस रिवर्स जा ही सकते हैं. And that is where early diagnosis is important. The only problem what I have seen with health checkups in Surat is you are doing a health checkup to know if there is a problem. फिर उसके बाद वो रिपोर्ट को देख के घबरा जाना और अपनी लाइफ को एकदम सल्क में लेना, तो दैट इज नॉट जस्टिफाइड. मतलब व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ हेल्थ चेकअप, मैं हमेशा कहता हूँ कि वेदर योर वाइफ हैज ब्रॉट और यू हैव कम योरसेल्फ, क्योंकि अगर वाइफ हैज ब्रॉट तो आई डोंट डू इट, क्योंकि फिर वो उसका फॉलो नहीं करने वाला. मतलब आई वांट दैट यू डू इट फॉर योर ओन हेल्थ, ओके, नॉट दैट योर वाइफ डज इट फॉर यू. But it will take some time for this thing to come. जब बंदा खुद आएगा, वाइफ पीछे ना पड़ेगी, because I suffer the same pain, so I understand that. So like you first you are doing a checkup. ये आपका जो लिपिड प्रोफाइल का एग्जांपल था, so why did you go for a lipid profile अगर आप उसके बाद डर जाने वाले और मेडिसिन लेना? You did it because Yeah. if you knew that there was a problem. मतलब एक फाइनल एग्जाम से पहले आप जब स्कूल में थे तो आपका ये सेमेस्टर एग्जाम क्यों होता था? बिकॉज यू कुड नो दैट देयर वाज अ प्रॉब्लम सो दैट यू विल फेयर बेटर इन योर फाइनल्स. So these reports you do it because you know that now there is a problem, you make a change. Like till now I was पर like enjoying my life. अब मुझे पता है कि मेरे थोड़े रिपोर्ट्स बुरे हो रहे हैं, now I have responsibility, then it is worthwhile. और फिर वो छोड़ने मतलब अगर आपका मतलब अटैक के बाद स्मोकिंग छोड़ने से अटैक से एक दिन पहले छोड़ देंगे ना तो भी अटैक नहीं आएगा. सो इट्स नेवर लेट एंड इट इज ऑलवेज बेटर दैट यू do things at the right time. मतलब I'm not saying you don't enjoy your life. I have lived life to the fullest. But at the same point of time, when you know a problem, you make those necessary changes. और तब आप जब change करेंगे ना, you will not feel bad. और मेरा हर एक अटैक वाले पेशेंट ने छोड़ ही दिया है वो, तो फिर उसके लिए क्यों रुकना? मतलब अगर आप छोड़ सकते हैं आज तो आप एक दिन पहले भी छोड़ ही सकते थे. Yes, there is no perfect day to start anything. I believe any day you think कि आज मुझे करना है, तो that's the perfect time actually to start. Yes. So एक और चीज मुझे बताइए, मुझे याद आया, like मैंने because we met for my uncle for the same reason, SVT अटैक होता है post कोविड पेशेंट्स को काफी.
So, what are the relations or correlations between the corona infections and the cardiac patients who encounter SVTs? So let me put it across. मतलब COVID does not only cause heart attacks. मतलब heart itself is not just heart attack. Heart का जो blood supply होता है वो coronary के में problem होता है तो heart attack होता है. You just because you just asked yesterday's only, I don't remember which Times or Indian Express, there is an article where the second wave they found that heart muscle मतलब myocarditis मतलब heart नॉर्मल बैलेंस में आपके लिए के हार्ट वीक हो जाना या हार्ट को फूल जाना was seen maximum with people in 18 to 30 years of age group. Yes, actually, ये yes, yes. सेकेंड वेव है. सो इनको हार्ट अटैक्स नहीं हुए पर उनके हार्ट ट्रांजिएंटली थोड़े वीक हो गए. टू बी फ्रैंक कितने सारे पेशेंट्स का जब मैं आईसीयू में देखने जाता हूँ रेफरेंस तो उनका हार्ट कमजोर आता है और उसकी वजह से लंग में जो पानी बढ़ता है उसकी वजह से उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है. सो मेनी अ टाइम व्हेन द डॉक्टर आल्सो लाइक द कोविड स्पेशलिस्ट डज नॉट बिलीव कि ये इसके लंग इन्वॉल्वमेंट इज नॉट एक्सप्लेनिंग द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट तो यूजुअली द हार्ट इज इन्वॉल्व. So similarly, COVID is a viral infection and viral infection causes autonomic dysfunction. ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन मतलब हमारे बॉडी में एक बैलेंस चलता है बिटवीन टू एक्टिविटीज. एक सिंपैथेटिक सिस्टम है, एक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम. वो हमारा पल्स कितना है, हमारा ब्लड प्रेशर कितना है, वो सब डिटरमाइन करता है. क्योंकि ये जो ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन होता है तो उसके वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम योर सिंपैथेटिक टोन इज इंक्रीज. मतलब आप में सिंपैथेटिक टोन इंक्रीज करने जो हमें अभी सुन रहे हैं मतलब आपके बॉडी में एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन और एक्साइटेटरी हॉर्मोन्स बढ़े हुए हैं बिकॉज योर बॉडी इज ऑल्सो रिकवरिंग फ्रॉम अ इन्फेक्शन. तो ये जो ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन होता है उसके वजह से ये एक्साइटेटरी हॉर्मोन्स बढ़ते हैं और उसके वजह से आपका बेसलाइन पल्स बढ़ जाता है. मतलब एसवीटी हैपेंस इन द मोस्ट सिवियर केसेस पर टू बी फ्रैंक लाइक आई वुड से 70%, so 7 out of my 10 patients has a baseline heart rate of more than 100, 110 when they are discharged from COVID infection. So rather हर एक का हार्ट बीट ज्यादा होना उसे इनअप्रोप्रिएट साइनस टेकिकार्डिया कहते हैं, is very common with COVID patients. And lot of my COVID patients are temporarily till their heart rate settles down, till the body rehabilitates to a damaged lung. क्योंकि जब आपके लंग को डैमेज है तो आपके हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ रहा है ब्लड को सप्लाई करने के लिए टू योर ऑल ऑर्गन्स. तो इसीलिए ये टेकिकार्डिया भी कितनी बार हार्म करता है हार्ट को. एंड दैट इज द रीजन टेम्पररी यू आर ऑन दीज मेडिसिन. ये सब एक लाठी है टिल योर थिंग रिकवर. के लंग के लिए एक लाठी था वैसे हार्ट के लिए देयर आर सर्टेन मेडिकेशंस व्हिच आर गिवन टिल योर हार्ट रिकवर्स कंप्लीटली. तो वैसे ही जैसे द लास्ट थिंग मतलब हमने अभी बोला कि कोविड में हार्ट भी फूल जाता है, हमने बोला कोविड में हार्ट रेट्स बढ़ जाते हैं, ये सब ज्यादा कॉमन है एक हार्ट अटैक आने से. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम द गुड न्यूज इज कि ये सब रिवर्सिबल है. मतलब 3 months में जितने के हार्ट फूले हैं उसमें 99.99% के हार्ट वापस नॉर्मल हो जाने वाले हैं. जिनके ये हार्ट बीट्स का इशू है वो सब भी वापस नॉर्मल हो जाने वाले हैं. सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. कोविड वाज एन इन्फेक्शन. मैं ये लास्ट परसेप्शन बहुत मेरे हर पेशेंट को कहता हूँ कि कोविड एक भूकंप था. भूकंप आया तो बहुत सारे बिल्डिंग टूट गए. अब भूकंप खत्म हो गया पर बिल्डिंग को बनने में रीबिल्ड करने में टाइम लगे. सो योर बॉडी इज गोइंग टू टेक सम टाइम टू रीबिल्ड. गो नेचुरली, यू डोंट हैव टू प्रूव थिंग्स. मतलब आई हैव पेशेंट्स जो मतलब नेक्स्ट टाइम मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं कि मैंने कल 10 किलोमीटर साइकिलिंग कर दी. ऑब्वियसली आपने करी बट दैट इज कॉजिंग प्रॉब्लम. मतलब whom do you want to prove कि मैं ये कर सकता हूँ नहीं कर सकता. यू आर गोइंग टू रिकवर. मतलब अगर आप कोविड में मर नहीं गए तो आप 100% नेक्स्ट 100 साल के लिए बचने वाले हैं. सो डोंट फाइट विथ योर बॉडी. डोंट ट्राई टू प्रूव थिंग्स. लेट द बॉडी रिकवर ऑन इट्स ओन. कितना का बॉडी एक वीक में रिकवर कर जाता है, कितने को 1 महीना लगता है. व्हाट्स द होल डिफरेंस. True this, true this. So we need to have patience basically, जो हमें होता नहीं है. So we are learning with time. Yes. So Priyank, some last quote or some आपकी तरफ से एक last line हो जाए to end the session. Something that people will remember.
And I also want like to tell everyone, अगर आपके पास कोई भी question है, like how much I know Dr. Priyank Modi, he is a super duper amazing human being as well. He's always available whenever you need, and I highly appreciate that. So even if you have the questions which you might have missed on asking or something, you can always put in our comment box also. I will definitely tag Dr. Priyank Modi, and he would surely be answering it. In one quote which I have always said and which I have followed in my life is health is happiness or happiness is health. Matlab, it's the other way around. If you are happy, you are going to be healthy. So Okay. अगर So इसको मैं थोड़ा सा break down भी करना चाहूँगी. Because when you say health is happiness and happiness is health, now we get to encounter two kind of people. For some people, health is a real happiness, so they work for it. You know, maybe physically, gym, running, or whatever. They take care of what they eat, a lifestyle, proper, schedule lifestyle, everything. There are other people who says खाने के लिए तो हम जिंदा हैं. I mean, जिंदा है तो हमें तो ये खाना ही है. So for them, that is happiness, which is actually not healthy, and then they encounter things. So I think थोड़ा सा rephrase जरूर से करना. So I would like to put this in technical terms, जो भी सुन रहे, you know, happiness hormones body में कौन से होते हैं? So we have, adrenaline. The happiness hormones are the endorphins. Okay. So your endorphins or your happiness hormone, मतलब body में जितना endorphin release होगा उतना you will feel happy. The two most common and the most effective ways of releasing endorphins in your body are sex and exercise. The problem with exercise is it takes time. आप मतलब you must have seen so many people, like I'm not really good into exercise क्योंकि मैंने ऐसा सोचा कि इतना part of life is for work and then I'll contribute to health. So the thing is, you must have seen people who are going to gym coming up and saying, could they do this? So once the problem with exercise is your first 2 or 3 months are not going to be good. But once you get used to, or your body gets used to that form of exercise, then your body will ask for exercise. Well, I have friends, okay, we go out on a trip, तो भी वो hotel में भी they want the gym. So we select a hotel based on कि वहाँ gym है क्या नहीं, because you don't want to miss those 2 days of exercise. So for that endorphin to get into your system, and whoever is listening, because you enjoy sex, right? So you अगर that is where I think people like you or like friends can make a role. Like as a society, if we are becoming healthy, मेरे हर एक friend अगर cycling करने जा रहा है, तो I will do it with them. वो initial part के लिए, और एक महीने के बाद source of motivation or encouragement to our people. Yes. And एक महीने बाद अगर वो सच्ची में बीमार हो गया और वो एक week नहीं cycling जाएगा ना, then also I'll go, because then my body would need that. So for sure, the first thing for exercise is difficult, but once you get used to it, you are going to feel happy doing exercise, and that happiness is healthy. And जो last में कहता हूँ, because as I said, as you just said, like कि मुझे sweet खाने में happiness मिल रही है, मुझे ये करने में happiness मिल रही है, मुझे smoke करने में happiness मिल रही है, मुझे alcohol लेने में happiness मिल रही है. So do things which gives you happiness, but at the same point of time, do it in moderation. Because if you are going to be stressed, it is going to be far more harmful than anything else. But at the same point of time, you should know what your stress busters are, and only you can make yourself happy. So वो चीज is self-reliant. Actually, ये मैंने भी थोड़ा सा realize कर लिया, because it's been like 2 years I have been playing powerlifting, and like 2 साल से शायद मैंने इतना lift नहीं किया. तो today even when you were just saying, I also made my mind to, okay, this year again I need to lift. So कल से मैं भी लग रही हूँ. So thank you very much, Priyank, for your good time. And this was actually a very informative session. I'm also going to save this on the IGTV so that anyone who has missed can come, and of course they can attend. It was a lovely time having you here, a lot to learn from you basically. And thank you very much. Thank you. Thank you so much, Amarat, for having me. Yeah, thank you. So I'm winding this off. See you soon. Yeah, bye.